Assalamu alaikum dear students. I welcome you to the course of Artificial Intelligence and lecture number 19. So first of all we will go through the previous lecture what we have done until now, and then we will continue based on that. In the last lecture we discussed what is facts, what are facts, fact list, what is the importance of it, how we can insert any fact in a fact list, and what are the differences if we have some space in it. If we put some carriage return, what will happen, what was the command we were using, assert actually, and then we discuss different varieties of assert. If we put spaces, if we put carriage return, what is the difference if we put space in the commas, in the quotations, double quotations, then what will happen. Then we also understand if you want to watch the facts, want to see which one is going into the fact list and which one is going out. So we also understand that. We then also understand what is the backslash used for. If we want to use some special character multiple times, then how we can use it, and we were using it through backslash. Then we also understand the basics of rules, how we can make a rule, what are the syntax, what are the important inside we need, what is if condition, how we will put it there, and then what is the then one, how is the syntax. We learn that one, and then we will continue from there. We also learn how to save it. We learn the command for it, and then inshallah today we will learn how to reopen it if we have any command, if we have any rules. Then we will go through the rules in detail, how we can make some changes in rule, how we can call it, how we can run it. And we will see if we want to make some printouts. Printout mean on the screen if you want to print something so that user can view it. And then we will also learn how we can make the variables. So today now we will need to reopen, and for reopen we have a command, load command. Load is the rule that you had previously saved to disk in the file duck.clp. हमने जो पहले लेक्चर में हमने इससे पहले में देखा था कि हम कैसे सेव कर सकते हैं एक रूल्स को, जो रूल्स हमने बनाए हुए थे. तो हमने सेव कमांड यूज़ की थी. अब हम करेंगे क्या कि उसको रीलोड करेंगे, हम वहीं से उसको ओपन करेंगे ताकि हम उसको यूज़ करें. यू कैन लोड अ फाइल ऑफ रूल्स मेड ऑन टेक्स्ट एडिटर इनटू क्लिप्स यूजिंग द लोड कमांड. हम लोड कमांड भी यूज़ कर सकते हैं. लोड में हम सिंपली लोड लिखकर उसके बाद उसका पाथ बता देंगे. और हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि हम फाइल में जाकर, फाइल मेन्यू में, और फिर वहाँ में लोड में जाकर वहाँ से फिर वो फाइल जो .cpp के साथ सेव है उसको ओपन कर लें. नाउ वी विल गो टू द प्रोग्राम फ्रॉम वेयर वी कैन सी हाउ वी कैन लोड इट. हियर इज फाइल, देन लोड. Now it is by default in a place where the executable is, and then we can see that last time what we have saved is already there. We can open it. Now when we open it, it says true. This means that it is already loaded, and whatever we had it is loaded. And if we want to see what was the rule, how we did it last time, so we can open it. And to open it we will need to have a command for it. So this was the rule that we did it in the last lecture, and then how we will need to see the command, how we can see and visualize what the rule was actually. And for that we have a special command. Now for that, to see what is in the rule, we have a command, what we call it ppdiff rule, and then we need to give the name of the rule. So in here sometime
you may want to see the rule while you are in Eclipse. There is a command called pp diff rule, the pretty print rule. So what we call it in a common way, that prints a rule. To see a rule, specify the rule name as argument to pp diff rule. So we will need to give name of the rule, whatever the name is, and then we'll ask to visualize it, to see it. So for that, first, as we will need to load it, so we load the file from here. We load. Now it is true. So now we need to visualize it, and for that we need to have the name of the rule. So the problem is we don't remember what is the name. So for the name, what we can see, we can put just simply rules. Then we will visualize what are the names of the rules. Now we have for total of one defined rule, diff rule. So we have only one rule which is loaded, which we created last time, and that is duck-sound rule. And this one we now know the name. So as we know the name, we can use it now for visualizing the rule. What it is? pp diff rule, and then the name. So now I know the name. What is name? Duck sound. Now I enter it. Now I have the rule which says diff rule in capital main and double colon. Duck sound is the name of the rule. Animal is duck. This is if condition, and then I have then, and then the action which is assert sound is quack. So here are some extra information. In last time, if you remember in the lecture when we were actually defining the rule, we had not put this main and not even this double colon, but now it is there. So by default when we save it, it is saved. This information is saved as an extra. We will learn it inshallah in near future what this is, and this is just now compared that this is some kind of constant values that we keep it here for using later on for usage. So now we understand कि अगर हम किसी रूल को विजुलाइज करना चाहते हैं जो हमने पिछली मरतबा बनाए थे, तो हम अगर देखना चाहते हैं कि वो रूल क्या था, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा क्या कि मैं कमांड लिखूँगा pp diff rule, और वो रूल का नाम यहाँ पर आ जाएगा. अब यहाँ पर प्रॉब्लम मेरे पास ये था कि पिछले लेक्चर में जब मैंने नाम रखा था मुझे अब याद नहीं कि क्या नाम था, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली कमांड लिखूँगा रूल. तो जब मैंने कमांड लिखा रूल का, तो रूल का कमांड लिखने के बाद रूल्स हैं एक्चुअली एस भी साथ है, तो जब मैंने रूल्स लिखे तो मेरे पास वो वाले सारे कमांड आ गए जो मैंने रूल्स आ गए जो मैंने डिफाइन किए हुए थे, क्योंकि मैंने लोड किया था इस वजह से. अब क्या हुआ कि सारे रूल्स आ गए और उसके नाम आ गए, तो मेरे पास नाम आ गया. अब मैंने उस नाम को यूज़ करते हुए उसकी डिफिनीशन चेक कर ली. अब ये हमारे पास आ गया. अब हम करना क्या चाह रहे हैं कि अब हम इसको फायर करना चाहते हैं. इफ देयर इज ओनली वन रूल ऑन द एजेंडा, दैट रूल विल फायर. Since the left hand side parenthesis of the duck sound rule is animal is duck, this pattern will be satisfied by the fact animal is duck and the duck sound rule should fire. To make a program run, just enter the run command, type in parenthesis run and press the carriage return key, then do as fact to check that the fact was created by the rule.
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम विंडो में जाएंगे, हम एक फैक्ट विंडो को भी साथ ओपन करेंगे ताकि हमें नज़र आ रहा हो कि हमारे पास कौन से फैक्ट्स हैं। अब रूल तो हमारे पास हैं लेकिन मेरे पास फैक्ट कोई नहीं है। अब रूल मेरे पास है लेकिन वो नॉलेज बेस में पड़े हुए हैं। एक और चीज़ जो मैं देखना चाहूँगा वो होगा मेरे पास एजेंडा विंडो, इसको भी मैं साथ ओपन कर लूँगा। अब एजेंडा विंडो में क्या होगा हम इसको डिटेल से देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर मुझे कोई फैक्ट इंटर करना पड़ेगा। और फैक्ट वही होगा जो मेरे पास इफ कंडीशन में होगा, इफ लाइट इज रेड। तो इफ तो मैं नहीं लगाऊंगा साथ फैक्ट के अंदर, सिर्फ ये लगाऊंगा लाइट इज रेड। अगर तो लाइट रेड है तो रूल क्या है, इफ लाइट इज रेड देन स्टॉप। अब यहाँ पर सेम इसी तरह मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, एसर्ट एनिमल इज डक। अब ये मैं इंटर करूंगा। ये जब मैंने इंटर किया तो मेरे पास फैक्ट आ गया एनिमल इज डक। ठीक है, नाउ एनिमल इज डक। तो अब जैसे ही मैंने ये इंटर किया मेरे पास आ गया फैक्ट वन मेरे पास इंटर हो गया। और साथ में एजेंडा में हम देखते हैं तो डक साउंड आ रहा है जो कि एक्चुअली रूल का नाम था, और F1 आ रहा है साथ कि कौन सा फैक्ट की वजह से ये रूल एक्टिवेट हुआ। रूल नंबर यहाँ पर उसकी प्रायोरिटी बताई जाती है, स्लॉट उसे कहते हैं, या स्लॉट तो एग्जैक्टली नहीं होगा, यहाँ पर उसकी सारी प्रायोरिटी होगी। और हम करेंगे क्या कि ये प्रायोरिटी नॉर्मली हम चेंज नहीं करेंगे, वैसे कर सकते हैं लेकिन नॉर्मली हम नहीं करेंगे। अब नॉलेज बेस में गया। अब दो तीन चीज़ें हमें जहन में या रखना होगा। पहला ये कि जैसे ही मैंने असर्ट किया एनिमल इज डक, ये फैक्ट था। फैक्ट जैसे ही आया फैक्ट लिस्ट में, वो नॉलेज बेस में स्टोर था रूल, जो कि एक्चुअली मैंने सिंपली लोड किया था। जब मैंने लोड किया तो मेरे पास ट्रू आ गया था, और हमने ये भी देख लिया था कि हम उसको कैसे चेक करेंगे। हमने सारा प्रोसेस देख लिया था, लेकिन अब ये था कि वो रूल एक्टिवेट कैसे होगा। तो जैसे ही वो फैक्ट आ गया हमारे पास एजेंडा में, वो वाले सारे रूल आ जाएंगे जो कि एक्टिवेट हो सकते हैं, जो एक्टिवेट होंगे, लेकिन वो अभी तक कुछ नहीं होगा जब तक हम इसको रन नहीं करेंगे। तो अब हम करना ये चाह रहे हैं कि कौन जो भी रूल एक्टिवेट हो गया है, जो भी मैच हो रहा है, मैच क्यों हो रहा है उसके साथ, क्योंकि हमारे पास इफ कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर हम इसको देखना चाहें रूल्स को दोबारा, तो यहाँ पर आप देखें मेरे पास इफ कंडीशन क्या थी, एनिमल इज डक। अब मेरे पास ये आ गया इफ, और फैक्ट भी यही है एनिमल इज डक। इस वजह से ये कंडीशन फुलफिल हो गई। अब यहाँ पर एजेंडा में मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई है। अब मैंने सिंपल करना क्या है, इसको रन करना है। रन के लिए मैं क्या करूँगा, रन कमांड लिखूंगा, रन। अब इसने क्या किया, रन के बाद एसर्ट पे आ गया देन कंडीशन में, जो राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड पे जो भी है वो हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगा। वहाँ पर हमने किया क्या था, हमने लिखा था एसर्ट साउंड इज क्वैक। हमने सिंपल एक असर्शन की थी। अब हमने ये काम कर लिया। अब हम आगे जाएंगे, हम और चीजें इसमें देंगे। व्हाट इफ यू रन अगेन, if you try this and run again, you will see that rule won't fire. You need to know a little more about some basic principle of expert system. A rule is activated if its pattern are matched by 1. A brand new pattern entity that did not exist before, or a pattern entity that did exist before but was retracted and
reasserted colon of the old pattern entity and thus now a new pattern entity. दो वजहों से हमारे पास, हम पहले तो ये ट्राई करते हैं कि अगर मैं दोबारा रन लिखता हूं यहाँ पर तो क्या होगा. सॉरी, दोबारा रन लिखने से कुछ भी नहीं होगा. उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो रूल था वो ऑलरेडी एक मरतबा फायर हो चुका है और जो फैक्ट था वो एक मरतबा आकर उसने रूल के साथ मैच करके एक्टिवेट हो गया है. इस वजह से इसके आगे हमारे पास दोबारा वो एक्टिवेट नहीं होगा. और यहाँ पर हमने देखा उसकी वजह क्या थी. एक वजह तो ये थी कि एक मरतबा जो नई एंटिटी है या तो वो आ जाए, मतलब कोई नया सिचुएशन आ जाए, हम दोबारा पूरे प्रोग्राम को रन कर सारी चीज़ें रीसेट करें तो तब होगा. क्योंकि अगर हम सेम लोकेशन पे हैं, सेम इनपुट आ रही है और वो एक मरतबा उसके अगेंस्ट एक्शन हो गया है तो दोबारा नहीं होगा, क्योंकि दोबारा सेम चीज़ रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा. अब पैटर्न एंटिटी, हमने दूसरी बात ये बताई कि अगर तब होगा अगर उसका एग्जैक्टली क्लोन आ गया. वो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है अगर हम उसको रिट्रैक्ट कर दें, मतलब ये कि हम फैक्ट लिस्ट को खाली कर दें, वहाँ से सारी चीज़ें निकाल लें और दोबारा उसको रन करें. फैक्ट्स हम निकाल देते हैं क्योंकि फैक्ट अभी उधर पड़े हुए हैं. अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो फैक्ट्स हमारे पास अभी फैक्ट लिस्ट में हैं, तब तक वो रूल दोबारा फायर नहीं होगा जब तक ये फैक्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है. इन इन्फ्रेंस इंजन सॉर्ट ऑफ एक्टिवेशन अकॉर्डिंग टू देयर silences. This sorting process is called conflict resolution because it eliminates the conflict of deciding which rule should fire next. CLIPS executes the right hand side of the rule with the highest silences of the agenda and remove the activation. हमने यहाँ पर जब आपने देखा कि रूल हमारे पास एक्टिवेट हुआ तो हमारे पास यहाँ 0 आ रहे थे, तो वो हमारे पास वो सिलेंसेस हैं जो प्रायोरिटी है, जिससे हम बताते हैं कि कौन सा पहले एक्टिवेट होना चाहिए, कौन सा रूल पहले फायर होगा और कौन सा बाद में होगा. जब हम नहीं करेंगे कुछ भी तो वो सारे एक ही लेवल पे होंगे. जो पहले आएगा वो पहले फायर होगा और जो बाद में आएगा वो बाद में फायर होगा. कोई प्रायोरिटी नहीं. हम उसको यूज़ करेंगे सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए. अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि उसमें 2 रूल्स एक्टिवेट हो रहे हैं तो कौन से रूल को एक्टिवेट करना चाहिए, जो पिछले बार हमने देखा था. दिस एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड फायरिंग द रूल इन एनालॉजी विद द फायरिंग ऑफ न्यूरॉन. ए न्यूरॉन इमिट्स अ वोल्टेज प्लस when a appropriate stimulus is applied. After a neuron fires, it undergoes refraction and cannot fire again for a certain period of time. Without refraction, neuron would just keep firing over and over again on exactly the same stimulus. यहाँ पर ये सारी बात एक्सप्लेन की गई है कि अगर तो हम बार बार वही काम करें या हम जो अपना फैक्ट लिस्ट है उसको खाली ना करें, उसको रिफ्रेश ना करें, रिट्रैक्ट ना करें, तो वो रूल बार बार फायर हो रहा होगा. तो उससे कोई मतलब हमारे पास कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा. वो वेस्टेज है जो रिसोर्सेज है उनका, क्योंकि न्यूरॉन भी इस तरह नहीं करता. नॉर्मली हमारे पास एक किस्म के इनपुट आ जाते हैं तो एक मरतबा न्यूरॉन फायर हो जाता है और फिर वो कुछ देर तक वेट करता है ताकि वो रिफ्रेश हो जाए. फॉर एग्जांपल हमने एक रेड लाइट देखी स्ट्रीट में, हमारे पास ये आ गया इनपुट, रूल ये फायर हुआ कि गाड़ी स्टॉप होनी चाहिए. अब गाड़ी स्टॉप हो गई लेकिन हम लाइट को रेड देख रहे हैं बार बार. अब लाइट रेडी है तो क्या हम दोबारा गाड़ी को स्टॉप करें? वो तो ऑलरेडी स्टॉप है, रूल फायर हो भी चुका है, तो दोबारा क्या करें? दोबारा ये इंफॉर्मेशन दोबारा कॉल करने की कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है. इस वजह से वो नहीं होगा, वो रूल फायर नहीं होगा. हम अगर बार बार रन लिखते भी हैं यहाँ पर हमने लिखा,
तो वो कभी रूल फायर नहीं होगा जब तक कि यहाँ से ये सारी चीज़ें हट नहीं जाती। द फॉलोइंग एग्जाम्पल शो एक्टिवेशन एंड फायरिंग ऑफ रूल। हम अब देखते हैं कि फायरिंग ऑफ रूल हम कैसे करते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि हम डिफाइन रूल करते हैं डक एनिमल इज डक, assert साउंड इज क्वैक, वॉच फैक्ट्स वॉच एक्टिवेशंस। हम साथ में अब वॉच करना चाहते हैं उसकी एक्टिवेशंस भी, तो हम देखेंगे कि किस तरह होगा, लेकिन उससे पहले हमें सारी चीज़ें क्लियर करना होगी। अब क्लियर करने से ये होगा कि जो हमारे सारे रूल्स थे वो भी क्लियर हो गए। तो मुझे क्या करना होगा, अब मैं इसको डिफाइन किया मैंने पीपी डिफाइन रूल, तो मेरे पास क्या आउटपुट आई, अनेबल टू फाइंड डिफाइन रूल डक साउंड, क्योंकि क्लियर करने से वो रूल भी सारे ख़त्म हो गए। मुझे अगर वो दोबारा लोड करने होंगे, मैं क्या करूँगा, लोड, अब ट्रू आ गया। अब मतलब ये हुआ कि मेरे पास रूल नॉलेज बेस में आ गया है। अब सेम रूल है, मैं इसमें और एडिशन करूँगा। अच्छा, दोबारा स्टार्ट करते हैं। नाउ मेरे पास सारे रूल्स लोड हो चुके हैं। मैं अब असर्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले कि मैं असर्ट करूँ मैं साथ में वॉच शुरू करता हूँ। वॉच, मैं वॉच करता हूँ फैक्ट्स को और साथ में वॉच करता हूँ एक्टिवेशंस को। दोनों अब मेरे साथ वॉच हो रही हैं। अब मैं करूँगा क्या कि मैंने सिंपली असर्ट करना है एनिमल इज डक, असर्ट करता हूँ मैं। अब मैंने ये असर्ट किया तो मेरे पास एक्टिवेशन क्या आई, 0, जो उसकी प्रायोरिटी है वो बता रहा है मुझे, और कौन सा रूल है जो फायर होगा उसका नाम आ गया, और फिर कौन से फैक्ट की वजह से होगा वो फैक्ट भी साथ आ गया। तो एक्टिवेशन मुझे ये बता रहा है कि एक रूल एक्टिव हो गया है, और जैसे ही मैंने इंटर किया असर्ट तो मेरे पास ये साइन आ गया इंटर होने का, कि ये अब इंटर हो रहा है। मैं करूँगा क्या, इसको मैं रन करता हूँ, सॉरी, अब असर्ट हुआ साउंड इज क्वैक, अब ये हो गया, और मेरे पास जो रूल है ये इंसर्ट हो गया, ये एक्टिवेट हो गया, जिसकी वजह से ये वाला रूल सेम उधर ही पड़ा हुआ है, और ये दूसरा अभी तक बाहर रिट्रैक्ट हुआ नहीं, इस वजह से वो भी वहीं पर है। अब मैं आगे जाऊंगा, नथिंग इन इफ पार्ट। अगर हम इफ पार्ट में कुछ भी नहीं रखते तो फिर क्या होगा, ट्राई करते हैं। डिफ हम सिंपली इसका नाम रखते हैं, नो इफ रखा हमने। फिर मैं करता क्या हूं कि मैं इफ सॉरी ये जो कंडीशन है वो उसको एम्प्टी रख देता हूं। इसको एंटर कर दिया मैंने। अब मेरे पास एजेंडा में आ गया कि नो इन्फो रूल है, और इसको एक्टिवेशन के लिए उधर स्टार आ गया। स्टार का मतलब यहाँ पर क्या होगा, हम अगर सिंपली रन करते हैं तो होगा क्या, जो स्टार था वो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा था एम्प्टी स्पेस को। मेरे पास कुछ भी नहीं था तो एम्प्टी स्पेस थी। एम्प्टी स्पेस की वजह से इफ देयर इज नथिंग देन द रूल विल फायर। अब हम इस चीज़ को आगे एक्सप्लॉइट करेंगे कि अगर हम
सिंपली रन लिखते हैं और हमारा प्रोग्राम रन हो जाए, कोई भी उसके लिए इनिशियली कुछ भी ना चाहिए हो और हम उसको स्टार्ट करवाना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसमें कुछ भी नहीं रखेंगे और हम सिंपली आगे कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करवाना चाहे, कोई चेन रिएक्शन स्टार्ट करवाना चाहें तो सिंपल एक रन लिखने से, एंटर करने से वो स्टार्ट हो जाएगा। हम फिर यूज़र से वैल्यूज़ ले सकते हैं, वो सारे काम हम करेंगे इंशाल्लाह आगे। लेकिन यहाँ पर समझाना का मकसद ये था कि हम बग़ैर इफ़ के भी हम एक रूल बना सकते हैं। राइट टू मी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं जहाँ पर मैं टाइपिंग कर रहा हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे, जहाँ टॉप लेवल है वहाँ मैं प्रिंटिंग करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, बिसाइड asserting fact in the right hand side of the rule you can also print out information using the print function. Eclipse also has a carriage return line feed keyword call CRLF, जिस तरह हम C में यूज़ करते हैं, which is very useful in improving the appearance of output by formatting it on different lines. For a change, the CRLF is not included in a parenthesis. As an example, हम इसको नॉर्मली पैरेंथेसिस के अंदर नहीं लिखते, हम इसको पैरेंथेसिस से बाहर रखते हैं और ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन में लेकर जाता है। और फिर हमें प्रिंट आउट टी एज अ टेक्स्ट, हम बताते हैं कि ये टेक्स्ट फॉर्मेट है तो हम टी उसके साथ लगाते हैं। इसको हम ट्राई करते हैं कैसे होगा। पहले हम क्लियर करेंगे सारी चीज़ें। जब हमने क्लियर किया, अब हम करते ये हैं कि डिफाइन रूल D1 हम रखते हैं उसका नाम। अब हम उसकी इफ कंडीशन बना रहे हैं। अब हम इसका दिन कंडीशन बना रहे हैं। यहाँ पर अब हम करेंगे क्या, प्रिंट आउट टी, फिर हम कोटेशन दिन में देंगे अब हमारे पास यहाँ पर मिसिंग फंक्शन डिक्लेरेशन फ्रॉम प्रिंट। अब यहाँ पर एरर आ गया है। अब एरर, जहाँ तक एरर नहीं है वहाँ तक का रूल हमारे पास नॉर्मली आ जाएगा, विजुलाइज हो जाएगा। जो भी इससे आगे कहीं पर गलती होगी वो उससे आगे प्रिंट नहीं करेगा, हमारे पास नहीं आएगा। तो ये एक तरीका है रूल गलती देखने का कि कहाँ पर गलती हुई है। तो हम देख रहे हैं कि प्रिंट की जो स्पेलिंग है उसमें गलती है, वहाँ पर टी मिसिंग है। तो अगर हम वो पूरा कर दें तो मसला हल हो जाएगा। अब हमारे पास कमांड पूरी हो गई। तो अब हम करेंगे क्या, हम assert करते हैं। ये हमने इंसर्ट किया तो हमारे पास आ गया कि एजेंडा में रूल है D1, क्योंकि हमने उसका नाम रखा था D1, और वो एक्टिवेट हो गया है रूल जो हमने फैक्ट दिया था F1 की वजह से। अब एनिमल इस टी है, हमने वो दे दिया। अब हम इसको रन करते हैं।
जब हमने रन किया तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई सेंसर नहीं हुई, हमारे पास आउटपुट कहाँ आ गया, क्वैक, जो हमारे पास कमांड लाइन है, जो जहाँ पर हम सारे कमांड्स दे रहे हैं। अब हम आगे जाएंगे। स्टॉप एंड गो का जो हमने प्रोग्राम सोचा था और जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं, अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, सपोज यू वांट टू राइट एन expert system to determine how a mobile robot should respond to a traffic light. It is best to write this type of problem using multiple rules. For example, the rule for the red and green light situation can be written as following. हम क्या कर सकते हैं, हम रूल्स बना सकते हैं, डिफरेंट किस्म के रूल्स बना सकते हैं, हर एक रूल को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, और फिर हम देखते हैं कि अगर हम उसको चेक करना चाहते हैं तो कैसे होगा। अब हम यहाँ पर रूल का नाम हमने दे दिया, हम पिछले में ही चेंजेस कर रहे हैं। लाइट रेड के नाम से हमने इसकी इफ कंडीशन रख दी, और फिर देन में हम आ गए तो हमने यहाँ पर क्या किया, अगर लाइट रेड है तो क्या हो, स्टॉप आ जाए। ठीक है, ये एक रूल हो गया मेरे पास, इसको मैंने एंटर किया। अब मैं दूसरा रूल बनाना चाह रहा हूँ अप की के साथ, यहाँ पर मैं कर दूंगा गो। ठीक है, ये गो आ जाएगा, और लाइट जो है वो मैं ग्रीन कर देता हूँ, और रूल का नाम भी मैं रख लूँगा लाइट ग्रीन के नाम से, LG। ठीक है, मैंने एंटर किया तो दोनों रूल मेरे पास नॉलेज बेस में चले गए। अब अगर हमने इसको एक्टिवेट करना है तो जाहिर है हमें उसके लिए कोई फैक्ट्स चाहिए होंगे। फैक्ट क्या होंगे, assert लाइट रेड। ये मैंने assert किए, क्या हुआ कि जो लाइट रेड के नाम से रूल था वो एक्टिवेट हुआ, और रूल वजह उसकी क्या थी, फैक्ट 2 की वजह से हुआ, और वो एक्टिवेट हो गया, लेकिन अभी रन नहीं हुआ। अब मैं करता ही हूँ कि मैं साथ में दूसरा असर्ट भी कर रहा हूँ। दूसरी असर्ट कौन सी है, ग्रीन, वो भी हो गया। अब दोनों को आप देखें, दोनों आ गए हैं, लाइट ग्रीन आ गया, और वो फैक्ट जो पहले था लाइट रेड वो प्रायोरिटी में नीचे चला गया, और उसके बाद मेरे पास F3 आ गया, लाइट ग्रीन आ गया। मतलब ये कि जो फ्रेश एंट्री होगी, जो रूल फ्रेश एक्टिवेट होगा वो पहले काउंट कॉल होगा, और फिर हम इसको रन करते हैं। पहले क्या आया, गो, एंड देन क्या आया, स्टॉप आया। तो जो हमारे पास फैक्ट सबसे आखिर में आएगा उसका रूल सबसे पहले कॉल होगा। तो स्टैक की तरह, जिस तरह हम स्टैक में एंटर करते जाएंगे, तो जो चीज़ पहले होगी वो सबसे आखिर में कॉल होगी, और जो सबसे बाद में आ रही होगी, एंड पे होगी, वो पहले कॉल हो रही होगी। अब हम आगे जाते हैं। अब अगर हम ये चाह रहे हैं कि इफ में मैं बहुत सारे कंडीशंस रखना चाह रहा हूँ, सपोज यू वांट अ रूल टू फायर इफ द रोबोट इज वॉकिंग and if the walking sign says walk, a rule could be written as following. Define rule, take a walk. अब ये हमने उसका नाम रखा रूल का। एक कंडीशन क्या है, स्टेटस वॉकिंग, और दूसरी क्या है, वॉकिंग साइन वॉक। अब हमने बताया कि हमारे पास अगर रोबोट है वो वॉकिंग कर रहा है, तो उसकी कंडीशन ये है कि वो वॉकिंग कर सकता है, वो कर रहा है, और साथ में हमने ये देखना है कि अगर वॉकिंग सिग्नल मिलता है तो तब वो वॉक करे, तब वो गो करे, मतलब कि वो ग्रीन हो तब वो जाए, और वो वॉकिंग कर सकता हो, कर रहा हो। तो हम क्या कहेंगे कि जब तक ये दोनों सेटिस्फाई नहीं होती तब तक ना हो, तब तक रूल फायर ना हो। तो इसको हम ट्राई करते हैं कि कैसे होगा।
उसके लिए हमें रूल डिफाइन करना होगा। तो रूल हम डिफाइन करते हैं। इसके लिए बजाय इसके कि मैं लेंथी नाम दूं, मैं इसका नाम रखता हूं टेक अ वॉक। ठीक है, इसका मैंने ये नाम दिया। एक हो गया। दूसरा हो गया। और प्रिंट आउट क्या करे, ठीक है वो। ये रूल मैंने बना दिया। अब मैं नेक्स्ट जाता हूं। यहां पर हम कुछ पॉइंट अब डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम इसको रन करते हैं। रन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एसर्ट करना होगा। एसर्ट स्टेटस मैंने एक एसर्ट किया। अब मैंने एक एसर्ट किया, इससे मेरे पास कोई भी रूल एक्टिवेट नहीं हुआ, हालांकि ये मेरे पास ऑलरेडी है स्टेटस एसर्ट वॉकिंग ये है, लेकिन इससे रूल एक्टिवेट नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक हम दूसरे एसर्ट नहीं करेंगे। दूसरा एसर्ट क्या था, वो अब हमने दूसरा जब एंटर किया तब हमारे पास आया क्या, हमारे पास जब तक दोनों इंसर्ट नहीं हुए तब तक कोई रूल एक्टिवेट नहीं हो रहा था। हालांकि दोनों अलग अलग हमने इंसर्ट किए, लेकिन फिर भी रूल एक्टिवेट हो गया। वजह क्या थी कि हमारे पास जो कंडीशन थी इफ, जब तक दोनों नहीं हो जाते तब तक नहीं होगा। वजह क्या थी उसकी, यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ पैटर्न्स और एक्शन इन रूल। हम ने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम बहुत सारे उसके अंदर पैटर्न्स रख सकते हैं, इफ कंडीशंस रख सकते हैं। If important point, the important point to realize is that the rule is placed on agenda only if all the patterns are satisfied by facts. जब तक सारे फैक्ट्स सेटिस्फाई नहीं होते तब तक रूल फायर नहीं होगा, एक्टिवेट नहीं होगा। दिस टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड लॉजिकल एंड कंडीशनल एलिमेंट, CE, in reference to the and relation of Boolean logic। हम जिस तरह Boolean logic में and यूज करते हैं, तो यहाँ पर लॉजिकल एंड कंडीशनल एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। और इसका मतलब ये है कि जब तक दोनों कंडीशंस फुल नहीं होते तब तक एक्टिवेट नहीं होगा। An and relation is said to be true only if all the conditions are true, because the patterns are of the logical and type. The rule will not fire if only one of the pattern is satisfied. All facts must be present before the left hand side of the rules is satisfied and the rule is placed on the agenda। हमारे पास दोनों की कंडीशंस, दोनों का होना ज़रूरी है। अब हम करेंगे क्या, इसको रन करते हैं। जब रन करते हैं तो अब आएगा गो, मेरे पास आ जाएगा। मैं अगर दोबारा इसको एसर्ट करना चाहूँ तो फॉल्स आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर वो ऑलरेडी पड़े हुए हैं। मैं करता क्या हूँ,
अब हम करते ये हैं कि हम कोई एक फैक्ट को रिट्रैक्ट करते हैं, रिट्रैक्ट 3। यहाँ पर हमारे पास एरर आ गया क्योंकि हमारे पास स्पेलिंग की मिस्टेक है। रिट्रैक्ट 3 जो मैंने रिट्रैक्ट किया, लाइट इज ग्रीन, मैंने रिट्रैक्ट कर दिया। अब मैं करना ये चाह रहा हूँ कि मैं दोबारा इसको इंसर्ट करता हूँ। अब मैंने दोबारा जब उस को इंसर्ट किया तो वो इंसर्ट हो गया और उसके दूसरे इंडेक्स के साथ F6 के साथ, और उसकी वजह से रूल भी फायर हो गया। मतलब ये हुआ कि रूल जितने भी थे वो अभी तक पड़े हुए हैं क्योंकि हमने क्लियर किया ही नहीं है। जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे वो सारे रूल्स पड़े रहेंगे और रूल एक्टिवेट भी हो गया। अब हमें रन करता हूं तो गो के आ जाएगा क्योंकि लाइट ग्रीन जब होगी तो गो हो जाएगा। अब मैं देखना चाहता हूं, मैं कोई वेरिएबल्स साथ में ऐड करना चाहता हूं। The name of the variable or variable identifier always written by a question mark followed by a symbol that is name of the variable। जर्नल फॉर्मेट क्या है उसका, हम नॉर्मली वेरिएबल कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन मार्क लिखते हैं और फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं। हम कोई भी कर सकते हैं नाम उसका, क्वेश्चन मार्क एक्स, क्वेश्चन मार्क्स, कोई भी नाउन, कलर, कोई भी हम उसका नाम रख सकते हैं। डिफरेंट तरीक़ों से हम वेरिएबल्स बना सकते हैं। Assigning a value before a variable can be used, it should be assigned a value. As an example of case where a value is not assigned, try to enter the following and Eclipse will respond with an error message। अगर तो हम कोई बना रहे हैं रूल, हम जिस तरह हमने रूल बनाया था कि कोई भी उसका जो फर्स्ट है हमने एम्प्टी रखा हुआ है, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं, हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो ये हमारे पास एरर देगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर कोई वैल्यू हमने असाइन नहीं की। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले बाइंड करना पड़ेगा, कोई वैल्यू उसके अंदर रखनी पड़ेगी क्योंकि हमने एक्स रख तो दिया, कोई वेरिएबल रख दिया, लेकिन हमने उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की। Eclipse gives an error message when it cannot find a value bound to question mark x or variable x। The term bound means that assignment of a value to a variable. Only global variables are bound in all rules. All other variables are only bound within a rule। हम बाउंड का मतलब ये है कि हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल को। वो हम कैसे करते हैं हम अभी देखते हैं। हमने ये भी पढ़ लिया कि जो ग्लोबल वेरिएबल है नॉर्मली वो हर जगह से उसमें वैल्यूज हम रख सकते हैं। बिफोर एंड आफ्टर अ रूल फायर नॉन ग्लोबल वेरिएबल्स आर नॉट बाउंड एंड सो Eclipse विल गिव एन एरर मैसेज इफ यू ट्राई टू क्यूरी नॉन बाउंड वेरिएबल्स। नॉर्मली अगर हमने कोई उसमें वैल्यू नहीं रखी हुई तो वो हमारे लिए एरर मैसेज देगा, अगर वो राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे। बाउंड हम कैसे करेंगे, कमांड है हमारे पास बाइंड वेरिएबल ए। अब हम इसको लिखते हैं। मैंने अब ये वेरिएबल ए, इसमें मैंने 5 वैल्यू बाइंड कर दी है, इसको असाइन कर दी है। अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ चेक करने के लिए। मेरे पास वैसे रिप्लाई में आ भी जाएगा कि कौन सी वैल्यू इसके अंदर ऐड हुई है। मैं अब करता ये हूँ कि इसको चेक करता हूँ प्लस फंक्शन के साथ वेरिएबल ए और मैं साथ में ऐड करता हूँ फॉर एग्जांपल 3। मेरे पास आ गया अब ऐड। उसकी वजह क्या है कि ये वेरिएबल प्लस ऐड करेगा इन दोनों को और वेरिएबल की वैल्यू क्या थी 5, तो 5 और 3 ऐड आ गया मेरे पास। बी असर्टिव। अब हम जाते हैं और आगे हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम कोई वैल्यू जो फिक्स ना हो
हम वो रखना चाहते हैं, हम assert करना चाहते हैं उसके अंदर। वन कॉमन यूज ऑफ वेरिएबल इज टू मैच अ वैल्यू on the left hand side and then assert this bound variable on the right hand side, for example। अब हम ये करना चाह रहे हैं कि हम कोई वेरिएबल यहाँ पर रखते हैं जो हम यूज़ करेंगे, कोई भी हमारे पास आएगा, कोई वैल्यू यहाँ पर आएगी तो हम उसको चेक करने के लिए हम फिक्स नहीं करना चाहते, हम यूज़र के बिहाफ पे छोड़ते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने नाम लिख किया, अब मैंने एक रूल बना दिया। अब मैं इसको चेक करता हूँ कि अगर मैं इसके लिए फैक्ट देता हूँ तो क्या होगा। अब मैंने ये एंटर किया, साउंड इज क्वैक, तो यहाँ पर मेरे पास एज अ वेरिएबल, एज अ फैक्ट आ गया साउंड इज क्वैक। एंड ये क्या हुआ, ये अब हम चेक करने के लिए कि सॉरी, ये मैंने यहाँ पर जो नाम लिखा था ये थोड़ा सा इसमें हम चेंजेस करेंगे। यहाँ पर क्योंकि जो इफ कंडीशन थी मेरे पास वो क्या थी, डक साउंड, और फिर वो साउंड लिखना था, तो मैं इसको चेंज करता हूँ, डक साउंड, ठीक है। अब मैंने इसको इंटर करना है, तो अब यह हो गया। तो मैंने यहाँ पर क्वैक एंटर किया क्योंकि ये क्वैक जो था ये जाकर इस वेरिएबल में सेव हो गया, और ये वेरिएबल यहाँ पर था डक साउंड। यहाँ पर कोई भी वेरिएबल आ जाए तो वो उसको एज अ वेरिएबल ले रहा था, मतलब फिक्स हम नहीं कर सकते थे, हम कोई और भी यहाँ पर जब करेंगे तो वो भी एक्टिवेट करेगा, इसकी वजह से एक्टिवेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कैपिटल में करता हूँ तब भी ये रूल को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं ये केस सेंसिटिव हैं, क्योंकि तो ये लार्ज अपर केस में है, इस वजह से हमारे पास रूल दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा। तब तक होता रहेगा जब तक कि इस वेरिएबल में हम डिफरेंट वैल्यूज़ देते जाएं। तो मतलब हमारे पास हम इसमें कोई वेरिएबल भी रख सकते हैं। तो आज के लेक्चर को हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे, और हम देखते हैं कि आज हमने कौन सी चीज़ें देखी। हमने देखा रीओपन कैसे करेंगे, जो हमने सेव किया हुआ था रूल को, उसको कैसे रीओपन करेंगे, हम रूल्स कैसे बनाएंगे, कैसे उसमें हम मुख्तलिफ इफ़ कंडीशंस रख सकते हैं, और फिर कौन कौन से एक्शंस हम ले सकते हैं। बेसिक हमने सीखा असर्शन का, फैक्ट का, और फिर प्रिंट करने का। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि वेरिएबल्स कौन से हैं, किस तरह के वेरिएबल्स हम यूज़ कर सकते हैं, और उनको हम फैक्ट या रूल के अंदर कैसे लगा सकते हैं। आगे इनसे हम और भी डिटेल देखेंगे। अब तक के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे, और अल्लाह हाफिज़।